today India has what 700 million internet users, 200-300 million women are online. इंडिविजुअल वुमेन को लोन देने में अभी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत हेजिटेंट हैं और इंडिया में वुमेन का जो क्रेडिट डिमांड है बहुत बड़ा है. वुमेन के ये जो साइलेंट बैरियर्स हैं बहुत बड़े हैं. Good morning everyone, I am Preksha Jain, founder of iVegan. So basically it's a platform offering vegan delights alongside satisfy your cravings. So today we are having a very special guest with us. We are having Mrs. Sairi Chahal ma'am. Let's dive deeper into her entrepreneurial journey. So good morning ma'am, it's really a pleasure to have you here. Thank you, very nice to meet you and I'm so excited about your venture. Okay, how are you feeling? Yeah, I'm excited. I think, one of the perks of my job is that I meet really smart founders every day and I get to see some really nice companies being built, some nice businesses being built. So I'm excited and grateful and thank you for having me here. So I have heard a lot about you. You're already doing much. So could you please go back and where you started, how you started? Right. So actually, before I start, I want to tell you a little story, which is actually a story about my mother. So, and I never thought until very recently how much the story has impacted me. It took me 50 years to sort of come to that truth. But, when my mother was in school, their school was till class 8th. And there was a neighborhood school, which is an all-boys school, which is a high school. But they wouldn't admit girls, and for her to go to high school, she had to literally cross the river, जो हमने बहुत बारी सुना है. But my mother, being my mother, went and actually fought with the principal of the boys' high school and said, "You have to admit me here. There's no rule that can stop you from admitting me here." So she was actually the first girl in an all-boys high school in a village in Punjab. So this story is at least 60, 70 years old, but I think it's very meaningful to me. And of course, she must have told me the story as a kid, and I think somewhere it's sort of, that's what psychoanalysis people do, right? They unveil the layers of your life, and I think that was really sort of something that was big part of where I came from. And then my mother actually studied for her post-graduation after marriage. So she went to a hostel and lived there. And unfortunately, she really didn't sort of join the workforce in a big way. She could have done a lot more. I think if there were better opportunities, better circumstances. So to me, I think that background was very important. So I knew as a kid, need to get out to make your own life. And got lucky, got to build a company very early on in my life, 99, in college. So I went to JNU. तो JNU में तो सब लोग PhD करते हैं और IAS बन जाते हैं. But I was sort of, there was an entrepreneurial streak. So, and I got a chance to build a company called Newslink. And the company did well, so थोड़ा सा beginner's luck. Tech and internet have always fascinated me. मुझे अभी भी मतलब बहुत ऐसे, like I'm scrolling Twitter endlessly to see AI वाले लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, what's happening, what are the big companies doing in their developer conferences. तो वो था, and then this whole, I think the background of Orthodox India, gender divide, the story of my mother was always there. तो 15 years ago I started working around women. एक छोटा सा प्लेटफॉर्म फ्लेक्सी मॉम से शुरुआत हुआ, फिर शीरोज़ बनाया, अब हम महिला मनी बना रहे हैं. आई एम ऑल्सो बिल्डिंग अ फंड. तो लाइक आई से वो तारे जुड़ती गई, इंग्लिश में कनेक्टिंग द डॉट्स बोलते हैं, हिंदी में तारे जुड़ती गई बोलते हैं, राइट? So and of course then a lot of similar friends I think in Udyam, and of course lot of partners जो ऐसा ही सोचते हैं और कुछ करना चाहते हैं. So really this is very inspiring, एक छोटे से टाउन से, and you are founder of Sheroes, it's a big brand empowering women. So alongside, as you said, हमें updated रहना भी ज़रूरी है कि क्या चल रहा है हमारे आसपास. So आपकी जर्नी जो है वो बहुत टाइम पहले शुरू हो गई थी, आपके hurdles and all. So what are the key problems that you tackle while you're
journey as an entrepreneur? Right. So I think कुछ entrepreneurial challenges होते हैं जो common होते हैं. मतलब I think funding का problem सबको होता है, market, scaling, operations. I think हमें भी थे, मतलब हम तो बिल्कुल ऐसे, when I used to go for fundraising, people used to say, oh, आप महिलाओं के लिए काम करते हैं, आप NGO होंगे, right? And we were the first company that was actually changing the narrative. Like, for example, we don't even use the word empowerment. We think that we are building technology solutions for a particular segment that needs it, right? So, obviously, some of these were very tactical. I think a lot of our job was कि इसको mainstream कैसे किया जाए. So, Sheroes 2012, 2013 में शुरू किया मैंने. और अभी आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज जो विमेन के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है. पहले विमेन एज ए कैटेगरी ही नहीं था, राइट? सो एवरीबडी यूज्ड टू थिंक आप महिलाओं के साथ काम करते हैं तो आप एनजीओ होंगे और आपको फंडिंग क्या ज़रूरत है, हाउ कैन यू स्केल दिस, हाउ कैन दिस बी अ रियल वेंचर. तो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अभी भी इवन लाइक 15 years later people still ask me like, are you a not-for-profit? And of course I think now I don't get offended at all, but earlier it used to make me feel very bad. But I think category creation, वो पूरा market बना, हमारे आंखों के सामने बना, and internet users बढ़े. Like अभी मैं investor lens से सोचती हूँ तो I also think how stupid we were. India में 2013 में इंटरनेट बेस वॉज 9-10 मिलियन यूजर्स, राइट? और उसमें से शायद 1 मिलियन महिलाएं रही होंगी. सो हमारा टोटल टैम अगर वो वीसी टर्म्स में देखा जाए तो 1 मिलियन था. एंड वी वर सेइंग हम विमेन का प्लेटफॉर्म बनाएंगे, विमेन ओनली बनाएंगे, एंड विल गो फ्रॉम देयर. एंड ऑफ कोर्स वी गॉट लकी, जियो हैपेंड, एंड ऑफ कोर्स टुडे इंडिया हैज़ 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, 200-300 मिलियन women are online. So miraculous, right? हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि the market will change so much. So I guess you have to go deep in the problem statement. थोड़ा सा चींटियों की तरह काम करो, थोड़ा कॉकरोच की तरह सर्वाइव करो, कभी कभी ऐसे वंडर वुमन बन जाओ. मतलब It's really fun. मतलब जर्नी करते करते पूरा आ गए. I've had honestly I wouldn't change anything. I've had a great time building और बहुत मज़ा आया. तो इसीलिए मैं एंटरप्रेन्योर्स को भी कहती हूँ, लाइक दिस इज़ अ थ्रिल, दिस इज़ लाइक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. ऐसे कुछ नहीं होता, आपकी मसल्स बन जाएंगी. मतलब ओलंपिक मेडल सबको नहीं मिलता है, बट मसल्स बन सकते हैं आपके, राइट? एंड यू कैन हैव लॉट ऑफ फन विद इट, एंड यू कैन ऑल्सो सॉर्ट ऑफ, आई थिंक यू गो टू बेड कंटेंट. ऐसे लाइक यू फील आपने कुछ किया है, जितना कर सकते हो उतना किया है, बट it just sort of is a good place to be in. And I'm sure you feel the same way, right? ऐसे अब आपने भी mission oriented बनाया है, so tell me more about like what triggered this. आपने क्यों शुरू किया? So like being an entrepreneur, this is something which I never thought of. Yeah. As a normal girl, I was studying very well. I was good in academics, and during lockdown, my father just said कि ठीक है, अब गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन था एंड लाइक माई स्कूल फीस वर हाई एंड ऑल्सो आई हैव 3 ब्रदर एंड सिस्टर टू लुक आफ्टर. सो लाइक ओके, उस टाइम पे इतना फ्रेंड्स का भी नहीं था. सो लाइक आई वेंट इनटू अ गर्ल्स स्कूल. इट वाज लाइक 500 मीटर अवे फ्रॉम माई होम. सो लाइक जैसे ही मैं एंटर हुई, द अपॉर्चुनिटी केम. सो लाइक बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो की रिसोर्सेज जो हमें स्टार्टिंग में बहुत एसेंशियल होते हैं. आई एम लकी कि मेरे को वो मिले. सो लाइक बेसिकली उद्यम शिक्षा प्रोग्राम वॉज देयर टू हेल्प अस. सो लाइक वी गॉट दैट सीड मनी, एंड आइडिया ये था कि वी नीड टू स्टार्ट अ बिजनेस विद दैट सीड मनी. एंड लाइक वो 2 बेसिस पे होना चाहिए, चाहे तो हम सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या फिर किसी नीड को फुलफिल कर रहे हैं. तो दैट टाइम थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का था. मेरी मदर, शी इज़ एन ऑलराउंडर, सो उनका थोड़ा क्राफ्टिंग में भी था. तो शी सेड कि ठीक है, क्राफ्टिंग का करते हैं. मेरे को याद है आई डिडंट एनरोल माई सेल्फ अंडर दैट प्रोग्राम. सो लाइक आई केम होम, बहुत टीचर्स ने भी कंफ्यूज कर दिया था. तो आई केम होम, मैंने मम्मी को बताया. सो लाइक उन्होंने मेरे को गुस्सा करा कि तू जो है अच्छे कामों में जाती ही नहीं है, फालतू के काम करती रहती है, और जो अच्छे वाले होते हैं वो तो स्किप कर देती है.
सो लाइक आई रिमेंबर दैट वॉज द लास्ट डे ऑफ रजिस्टरिंग. सो लाइक मैंने घर से ही इवनिंग में मैम को कॉल किया कि मैम कुछ हो सकता है क्या. सो मैम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम देखते हैं, यू मेक योर टीम. एंड इट वॉज लाइक 2,000 रुपीज़ पर हेड. सो वी आर द मेंबर ऑफ 4 person. So like 8,000 हम लोग के पास टोटल सीट मनी था. So I started home decor. So what I do is we collected the bottles, wine bottles from rack pickers for 1 or 2 rupee, and like I visited wholesale market, gather some material and we craft them and then we sell them. So उसके अलावा मेरे पास क्ले प्रोडक्ट्स है एंड ये पूरा मेरी मम्मी ने हेल्प करी थी. मेरी मम्मी जो है वो होम ट्यूशन्स भी देखती हैं एंड शी इज़ ऑल्सो अ टीचर इन स्कूल. सो लाइक बहुत ज़्यादा काम होता है, घर को भी मैनेज करना पड़ता है, बट शी हेल्प मी अलॉट. सो 11th-12th में मैंने वो किया. आई हैव जनरेटेड रेवेन्यू लाइक लैक्स ऑफ रेवेन्यू उसको करके. एंड देन वी गेट इन टू कॉलेज. आई एम करंटली स्टडिंग इन NSIT. इट इज़ इन द्वारका सेक्टर 3. सो वैसे तो इंजीनियरिंग कॉलेज है बट आई एम डूइंग BBA प्लस MBIB. इट इज़ अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड वहाँ पे स्कॉलरशिप है बेसिकली. सो वहाँ पे एनरोल करने के बाद हम लोग का वो भी इंटरव्यू प्रोसेस पे था. सो लाइक इंटरव्यू भी ऐसे था कि देयर वर 800 पीपल अराउंड एंड द सीट्स वाज ओनली 40. और उसमें भी क्राइटेरिया था कि जनरल वाले 13 होने चाहिए, SC ST इतना. सो लाइक इंटरव्यू बेसिस पे था पूरा. सो मेरे को याद है वो लिस्ट जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया था. सो लाइक आई वॉज लाइक 6th ऑल ओवर एंड जनरल की कैटेगरी में 2nd रैंक पे थी. सो लाइक दिस इज़ हाउ आई गॉट इनटू NSUT. एंड लाइक वहाँ पे भी मैंने अपना होम डेकोर का ही शुरू किया, बट लाइक सडनली आई लूज इंटरेस्ट. लाइक कॉलेज लाइफ हो जाती है, सो लाइक मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. ऑल्दो मेरा जो कॉलेज था रेगुलर था, वी हैड 3 days फ्लेक्सिबल वर्क टाइम की. 3 days कॉलेज जाना है, बाकी के डेज हम लोग को हमारे बिजनेस पे वर्क करना है. इट्स लाइक BBIV, इनोवेशन वेंचर डेवलपमेंट. सो लाइक वी नीड टू एस्टैब्लिश आवर बिजनेस. सो अलॉन्ग साइड वो करा तो थोड़ा लूज इंटरेस्ट हो गया मेरा ऑलरेडी, तो थोड़ा ब्रेक आ गया बीच में. एंड देन लाइक हम लोग नॉर्मली क्लास डिस्कशन कर रहे थे एंड आई नेवर थॉट कि क्लास डिस्कशन वुड ब्रिंग मी हेयर स्टार्टिंग अ वीगन बेकरी ब्रांड. सो लाइक वी आर जस्ट डिस्कसिंग. सो लाइक माई टीचर वॉज फेड अप विद अस कि लाइक तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, BBA के बच्चे हो, थोड़ा करो, तो नहीं है आइडियाज़ तो वर्क करो. सो लाइक हम लोग कुछ आइडिया डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार लाइक डिस्कस किया कि उनके कज़न को सिलेक्ट डिसीज़ है. सो लाइक ही कैन नॉट ईट all those gluten and concept. तो gluten का concept was new, although my veganism is something which I had in my family. my बुआ जो है बहुत पूरा vegan का है. So वहाँ से मैंने शुरू किया. and also we are having a fest at NSUT. it happens in March. so like we are also having this time. so like last time हुआ था तो we were providing stalls. usually ये stalls होती है वो 3 days का 80,000 90,000 to lakhs ऐसे charges होते हैं, but like हम लोग को फ्री में मिल रहा था. सो लाइक अब देखना था कि करना क्या, क्योंकि मोटिव यही था कि पैसे कमाने हैं स्टॉल्स में, मजे के साथ साथ पैसे भी कमाने हैं. सो लाइक स्टॉल्स की लिस्ट आने जाती है कि वी हैव बिग फ्रेंड्स, KFC है, McD है, सो लाइक चायोस है. सो लाइक व्हाट शुड वी डू. सो लाइक जब लिस्ट सर्कुलेट आई रियलाइज्ड कि वहाँ पे कोई मतलब कोई बेकरी का कुछ नहीं है. वी डोंट हैव केक्स, पेस्ट्रीज, मफिन्स एंड ऑल. सो लाइक मैंने मम्मी को बताया, तो लाइक मम्मी के ठीक है. पहले तो ये था कि लाइक मैं बाहर से लेके एंड देन वी विल सेल एंड देखो मार्जिन वहाँ से अपना अर्न कर लूँगी. बट मेरी मम्मी का तो चलता ही है दिमाग, तो लाइक उन्होंने देख लिया गूगल पे. सो लाइक शी केम टू नो कि विद इन अ 500 to 800 मीटर डिस्टेंस देयर इज़ अ लेडी जो होम बेकर है एंड शी प्रोवाइड कोर्स ऑल्सो. सो दैट टाइम आई यूज टू डू टीचिंग ऑल्सो. लाइक 5th to 8th मैं पढ़ाती थी और इतना मैं अर्न करती थी कि मैं अपने आप के खर्चे निकाल लूँ. लाइक शॉपिंग हो गया, आउटिंग हो गया, ईटिंग हो गया. सो लाइक बर्डन नहीं रहा कभी फैमिली पे. इनफैक्ट कभी उनसे पैसे नहीं मांगे. ट्रैवलिंग भी सब खुद से रहता था. सो लाइक मम्मी को लगा, ऊपर से जब कॉलेज में भी इंटर्नशिप आती हैं, सो लाइक वो भी करिए है. सो लाइक मम्मी ने करा, वहाँ पे कोर्स था, सो दैट आई डिड फ्रॉम माई पर्सनल सेविंग्स. उसके बाद कोर्स तो सिर्फ 8 days का था. अब लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लाइक द फिनिशिंग, क्राफ्टिंग एंड ऑल. सो लाइक मोक्षा में मैंने स्टॉल सेटअप किया. 3 days स्टॉल था. सो लाइक ऑल्दो द सेल्स वॉज नॉट गुड, वी ओनली अर्न लाइक 5,000 to 6,000 फ्रॉम 1st and 2nd day. 3rd day हमने सोचा कि मज़े करते हैं, नहीं लगाऊंगे स्टॉल. सो लाइक वैसे रहा, बट लाइक आई लाइक दिस फीलिंग ऑफ मी बीइंग एन होम बेकर. सो चलता रहा. सो लाइक अब देन थोड़ा एकेडमिक्स आ गया. आई गेट
माई एग्ज़ाम्स. सो लाइक एग्ज़ाम्स के बाद वी हैड 2.5 months फ्री लाइक ब्रेक था. सो मेरी मासी वो भी एक एक्सपोर्ट बिजनेस में है. सो लाइक जस्ट इन फ्रंट ऑफ अ फैक्ट्री विच इज़ इन ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे एक बेकरी प्रोडक्शन यूनिट है. सो लाइक वहाँ पे बात करी एंड 2.5 months मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप करी. अरे वाह, that's So like clever. that was non paid although, but like हाँ hands on experience जो सीखने को चाहिए मिला. होता है वो मिला. बहुत एक्सपर्ट शेफ्स से लाइक पूरा बेकरी का. हम याद है जब छोटे बच्चे थे तो लाइक हमको रोल आता था एक Yeah. और उसमें क्रीम roll. हाँ क्रीम रोल. सो लाइक वो भी वहाँ बनते थे. सो लाइक था बहुत कुछ खूब खाने को लर्निंग. मिला. डेली मॉर्निंग में फिक्स था कुछ ना कुछ खाना. और लाइक वहाँ पे इतना हो गया ना, लाइक 5 to 6 days में इतना बन गया. जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो मैनेजर से लेकर जो उनके ओनर थे लाइक दे वर बहुत सपोर्टिव. सो लाइक अभी भी मैंने स्टार्ट किया. सो लाइक मेरे को जो प्रॉब्लम्स थी मैंने उन्हीं को कांटेक्ट किया कि मैं कैसे करूँ. सो लाइक अभी भी वो लोग हेल्प करते हैं. सो लाइक हम लोग का फिक्स, हम लोग बातें करते थे, बनाते थे. सो लाइक 3 months मैंने पूरा वहाँ पे काम किया है. उसके बाद देन आई स्टार्टेड, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया एंड देन आई स्टार्टेड माई ब्रांड. पहले जो था मैंने शुरू किया था मामा पीस से. तो मामा ये था इनकलकेट करने को मदरहुड को एंड पीस इसलिए था कि मैं पर्सनलाइज कर सकूँ ब्रांड को. बट देन आई स्टार्टेड कि नहीं, थोड़ा और डायमेंशंस में घुसते हैं. पीपल वांट नीड्स टू नो कि लाइक वीगन होना चाहिए. लाइक इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट एंड मार्केट जो है वीगनिज्म की एंड ग्लूटेन फ्री की अब इट इज़ ग्रोइंग रैपिडली. सो इससे दिन मैंने आई वीगन अपना स्टार्टअप शुरू किया एंड करंटली आई एम सप्लाइंग इन माई ओन कैंटीन ऑफ कॉलेज. Perfect. So we also have like I plan to open an outlet. Like अभी उसको time है. So like that is how I'm doing बताना this. जब करोगे, right? We'll definitely visit. I can see you have nice products here. You can taste You have actually. brownies. I'm dying to eat them actually. मैं खोल के देखना चाहती हूँ क्या है इसमें. Like this is also contain brownie. Yeah, very nice. And it's such beautiful packing. ये सब मतलब थोड़ा like ऐसे- आजकल चला हुआ है कि थोड़ा unboxing experience होना चाहिए. unboxing. I know. I saw your Instagram. It's very pretty photos. I told you. Thank you so much. I know. I definitely will. So veganism actually is excellent because we've become health conscious, right? So अब सब, you know, like you see these weights here. हम सब, you know, we all want to live better, and I think plant-based is excellent. It's good for everybody. And I have a lot of friends who are like stark vegans. My own family actually, and yeah, no, this is excellent. I love, you know, बहुत hustle app में, and I'm sure you will go a long, long way. ऐसे like I can see कि ऐसे chain बनने वाला कहीं पे, you know, and it's really, you know, very heartwarming. And तो अभी जहाँ आप है क्या plans है आपके, like आगे क्या करेंगे? कॉलेज कब खत्म होगा पहले तो? डिग्री करोगे ना पूरी? हाँ ऐसे पूरी. लाइक अभी 2nd year में हूँ. अभी खत्म होने वाला है लाइक लास्ट सेमेस्टर. उसके बाद अभी मेरा और 3 years का रह रहा है क्योंकि इंटीग्रेटेड है BBA MBA. प्लस पॉइंट बस ये है कि हम लोग का जो कोर्स है वो बहुत ऐसे डिज़ाइन है कि हम अपना बिजनेस को you टाइम can be entrepreneur. हाँ, हम अपने बिजनेस को टाइम दे सके. लाइक एकेडमिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर हम क्लासेस मिस करते हैं सो वी गो एंड टेल आवर प्रोफेसर्स की थोड़ा काम है. सो लाइक दे मैनेज आवर अटेंडेंस एंड लाइक डोंट वरी, यू गो एंड Yeah, no, this is the right way actually. That's how you learn, and I think वही है. It all starts with one opportunity. जैसे मेरा पहला स्टार्टअप शिपिंग स्टार्टअप था. मुझे तो मतलब कुछ भी नहीं मालूम था. But you know, I just met these guys and they told me about the idea, and I just put my hand up. So to my credit, the only thing I did was show up, or they gave me that opportunity, and I think everything happened from there. It's really incredible. ऐसे कौन सी चीज़ कहाँ से आ सकती है, राइट? मतलब वो जैसे बेकिंग कोर्स आपके घर के पास था. और यू नो आपने फटाफट कर लिया, फिर इंटर्नशिप भी कर ली, यू नो चलता चला गया. लाइक जब तुम कुछ करने की सोचो तो लाइक हाँ वही. तो काफ़ी इंस्पायरिंग था ये सब करना भी. और अभी भी लाइक बहुत प्लान्स है कि लाइक एक्सपैंड करना है. सिर्फ एक नॉर्मल बेकरी ही नहीं ओपन करनी है. लाइक एक ब्रांड, ट्रस्टफुल वर्दी ब्रांड जिसको लोग जो है ट्रस्ट कर सके. एंड ऑल्सो क्योंकि वीगनिज्म का कॉन्सेप्ट है, सो वी rather than selling, we need to educate them, like educate and also build your own community. People who already are bought into the idea,
they probably care for it. And of course, I know I have a lot of friends who struggle, vegan खाना ढूंढते रहते हैं हर जगह, and vegan cakes तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं. And yeah, no, excellent. यही एक्चुअली वीगनिज्म का मेरे को एक थोड़ा वो था. घर के पास जो बेकरीज होती है मैंने उनको कैटर करने की कोशिश करी, बट यूजुअली वो लोग स्क्रैच से बनाते हैं, दे हैव लो कॉस्टिंग. सो लाइक एक को सप्लाई करने की कोशिश करी थी, 2-3 डेज करा, बट लाइक वही स्टैंडर्ड मैच नहीं हो पाए, सो आई हैड टू ड्रॉप दैट. सो लाइक वही कि एक स्टैंडर्ड बनाना है. I think a lot of building is saying a lot of no's as well. और कई बार आई थिंक जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग सेटअप्स हैं, दे बिल्ट अ सर्टन वे. एक टाइम में बने थे, एक चीज़ के लिए बने थे, एंड समटाइम्स यू जस्ट हैव टू बिल्ड लाइक योर ओन इकोसिस्टम. यू हैव टू सॉर्ट ऑफ. तो अभी बताइए कि यहाँ से क्या क्या माइलस्टोन्स हैं. आई नो आप वेबसाइट बना रहे हो. वेबसाइट इज इन डेवलपमेंट, राइट. एंड देन और सप्लाई कहाँ करोगे, लाइक हाउ विल यू गो टू मार्केट, और क्या क्या करोगे? सो लाइक अभी जीएसटी और लाइक फूड लाइसेंसिंग ये सब हो गया है. सो लाइक अभी क्लाउड किचन पूरा ऑपरेट करना है, मे बी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा. अरे वाह, वेरी कूल, वेरी वेरी कूल. सो लाइक अभी यही प्लान्स है. बाकी क्योंकि फूड इंडस्ट्री है, सो लाइक अभी जो है मेरा कैंटीन को सप्लाई कर रही हूँ, दैट इज़ नॉट लाइक अर्निंग मोटिव से नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए कि मैं कैसे बल्क ऑर्डर्स को हैंडल कर पाऊँ. सो लाइक दैट्स व्हाई आई एम केटरिंग दैट देयर. बाकी जो पर्सनल है, बेनिफिट ये है कि मार्केट जो है ग्रोइंग है, लाइक जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, स्कोप तो फूड मार्केट में वैसे भी बहुत ज़्यादा ही है, रहता है. इट्स मैसिव एंड बहुत कुछ कर सकते हो. सप्लाई कर सकते हो, आउटलेट कर सकते हो, केटरिंग कर सकते हो. सो लाइक अभी बेकरी सिर्फ एक स्टार्टिंग है, बाकी एक ब्रांड बनानी है for one-stop destination for all vegan recipes. Vegan, this thing, yes. I'll introduce to this friend of mine. वो पुणे में रहती हैं. वो actually vegan community चलाती है, इंडिया की सबसे बड़ी vegan community. Her name is Palak. I'll make a connect for you. And you know, interestingly, जो आप कह रहे थे कि you know brand बनाना है, I do think it's really valuable. लाइक जैसे अभी हम महिला मनी में, बाय द वे, देर आर 3 kind of businesses that come to us the most: beauty parlors, tailoring boutiques and neighborhood boutiques, and food businesses. एंड फूड में भी होम बेकर्स एक बहुत बड़ा कैटेगरी है. इनफैक्ट हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें व्हेन यू गो फ्रॉम यू नो बेकिंग ऐसे घर पे स्मॉल बैच टू लाइक अ रियल सप्लाई केटरिंग वाला बैच. तो मुझे तो मालूम नहीं था दैट an industrial grade oven is so expensive, you know, or so when home bakers turn slightly more scale, तो उनको वो oven चाहिए होता है, तो उसका loan financing हम महिला मनी में करते हैं. So we see a lot of growth of food businesses, and I think अभी ये process of certification, GST streamline हो गया. It's become like very easy to get all of this. And we also run something called Mahila Money Talks. So we in fact invite entrepreneurs to come and share their journeys. You should come and talk about, you know, what you're building. I think it'll inspire a lot of other people. But we often sort of tell our community to build their own brands. You know, brands is a big one. And it's जो entrepreneur खुद कर सकता है. I think this is something you can't outsource. I think this is मतलब अपने सोशल मीडिया पे रोज़ कुछ डालें, रोज़ अपना you know your type of company, right, your type of brand. And I see that with Shiro's as well. तो मतलब यूनिक कंपनी तभी बनी जब वो यूनिक ब्रांड बना रहे. We did things our way. स्टार्टिंग में मेहनत तो करनी पड़ती है, बट हाँ, रिजल्ट्स केम अलॉन्ग साइड. जैसे कि अभी आपने अपॉर्चुनिटी दे दी, योर फ्रेंड रन्स अ वीगन कम्युनिटी, सो लाइक वही तारे जुड़ गई हैं. बहुत सारे तारे. आई नो. आई थिंक अ लॉट ऑफ दिस इज जस्ट नेटवर्क्स. मतलब लोग यू नो लाइक यू डोंट इवन नो कहाँ से लोग आके आपको हेल्प करते हैं. एंड देन सो लाइक अर्लियर आई स्टार्टेड, आई थॉट कि लाइक फंडिंग थोड़े का वो रहेगा मेरा, बट नहीं, बाद में लगा कि नहीं, पहले मार्केट को कैटर करना है, उनको एजुकेट करना है कि होता क्या है, तभी तो आगे बढ़ेगा. लोगों को अवेयर ही नहीं होगा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है. सो लाइक आई रिमेंबर आई स्टार्टेड विद लाइक 50-60,000. लाइक बहुत बड़ा वो फंडिंग नहीं चाहिए था. सो लाइक दैट वाज माय ओन इन्वेस्टमेंट की जो मैंने करी थी. सो लाइक थैंकफुल कि हाँ हो गया है, वो सब चला गया है. वरना स्टार्टिंग में लाइक इन्वेस्टमेंट के बाद लाइक 5-6 मंथ्स तक कुछ था नहीं रिजल्ट. सो लाइक
ताने मिलते थे घर से कि लाइक पैसे लगा दिए हैं, निकालेगी कब। सो लाइक अब हो गया है, सो लाइक कोई कुछ नहीं कहता। लाइक फैमिली भी सपोर्टिव रही है, यू नो। बेस्ट पार्ट यही रहता है कि अगर तुम लोग को सपोर्ट करने वाले मिले। अगर लोग करते हैं कि लाइक नहीं करना, नहीं कर, तो खुद को भी एक मोटिवेशन नहीं आती है, वो भी चली जाती है, जो रहती है वो भी चली जाती है। No, I understand, absolutely. I've seen the same. मतलब in fact पहले तो मतलब फंडिंग के ऑप्शंस भी नहीं थे, सो ऐसे बहुत सारे ट्रायल एंड एरर से ऐसे सीखा। पर अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सो ऑफ कोर्स एज यू डू योर financing plan, तो of course count me in. I'll write you a small personal check. Okay. And second, I think in fact कल एक सेशन था जिसमें हमने यही बात करी कि अपने बिजनेस को कैसे फाइनेंस करें, एंड हर बिजनेस के लिए सब तरह की फाइनेंसिंग रेलेवेंट नहीं है। सो डेट, एक्विटी, ग्रांट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, तो बहुत तरह के फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं कभी। बट आई जस्ट फील कि यू शुड गेट people who believe in you, and also early backers किसी भी बिजनेस में, चाहे वो फ्रेंड्स हों या इंस्टीट्यूशनल हो या कोई भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो उद्यम का 2000 रुपीज़ सीड मनी बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट, आपकी जर्नी में। सो कैपिटल भी एक ट्रिगर है। इट्स बेसिकली द कैपिटल शुड लीड टू द नेक्स्ट कैपिटल। तो लाइक दैट सीड मनी वाज अ पुश, लाइक हम लोग को कुछ करने के लिए, लाइक इनिशियली वी नीड अ पुश, तो लाइक वो मेरे लिए उस चीज़ का एक्ट किया। सो अभी आप जैसे कि अपना शिक्षा, महिला मनी आप अपना कर रहे हैं, सो लाइक फाइनेंसिंग में है वो, एंड दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स ट्रस्ट। बिल्कुल। सो लाइक वो कैसे आपने बिल्ड किया? तो एक्चुअली हम उसको पहले तो हमने इसको वुमेन ओनली बना दिया। तो हमने देखा कि जब बैंक्स और NBFCs लोन देते हैं, और अगर वो मेन और वुमेन दोनों को लोन दे रहे हैं, तो 90% लोन मेन को जाता है, तो वुमेन को बहुत कम परसेंटेज जाते हैं, और वहाँ पे भी उनको बहुत मुश्किल होती है। लाइक आई थिंक लाइक अगर वुमेन बैंक जाती हैं तो उनको बोला जाता है अपने हस्बैंड को लेके आइए, अपने फादर को लेके आइए। इंडिविजुअल वुमेन को लोन देने में अभी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत हेजिटेंट हैं। सो हम अपनी वुमेन को यही कमिट करते हैं दैट आपका बिजनेस है तो आपको ही लोन देंगे, हमें कोई नहीं चाहिए, वी डोंट नीड टू ब्रिंग अ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। सो दैट हेल्प्स अस बिल्ड ट्रस्ट। अब हम डिजिटल हैं, तो हम ये नहीं कहते कि अपनी फ़ाइल उठा के ब्रांच आइए, हम ऐप पे, फ़ोन पे अप्लाई कीजिए, फ़ोन पे ही डिस्पर्स होगा, फ़ोन पे ही रीपेमेंट होगा। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। पर मोर देन दैट हम क्या कर रहे हैं कि फाइनेंसिंग एक पार्ट है बिज़नेस का, पर बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, राइट। मार्केटिंग कैसे करें, लीगल कैसे करें, कंप्लायंस कैसे करें, तो हम पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो महिला मनी पे रोज़ एक ओपन हाउस होता है, तो एंटरप्रेन्योर्स आके कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, और वहाँ पे हमारी टीम है जो उसको सपोर्ट करती है। हमने एक हेल्पलाइन बना दी जो कि एक बिज़नेस हेल्पलाइन है, आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर हम स्पेशल कम्युनिटीज़ बना रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स की, बेकर्स की, बुटीक वालों की, प्री स्कूल्स की। तो बिजनेसेस जहाँ हमें लगता है कि हम थोड़ा डीप जाके सपोर्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा वाई कॉम्बिनेटर की तरह है। मतलब आप कैपिटल तो दे रहे हो, पर कैपिटल के बाद आप जो चेक देंगे वो तो एक बार देंगे, पर जो बिज़नेस है वो मतलब हमेशा के लिए, राइट। तो हाउ कैन वी एक्सटेंड दैट सपोर्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हम भी यही कर रहे हैं। फिर हम भी एंटरप्रेन्योर्स को लाते हैं अपनी स्टोरीज शेयर करने के लिए। वी ऑल्सो ट्राई एंड मेक इट स्लाइटली एजुकेशनल, बिकॉज बहुत सारे बिजनेस ओनर्स मतलब फाइनेंस से नहीं आते, सब लोग MBA से नहीं आते, बहुत सारे लोग ऐसे ऑर्गेनिकली घर से शुरू करते हैं, राइट। तो उनको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है इस टू मेक श्योर कि वो सही फाइनेंशियल डिसीजंस लें। तो हम भी मतलब बिल्कुल कम्युनिटी बना रहे हैं, और उसमें बहुत सारा इंटरेक्शन है, बहुत सारा सपोर्ट है। वुमेन ओनली है, तो आई थिंक वुमेन फील लिटिल मोर कॉन्फिडेंट। कोई भी आके पूछ सकता है, चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी बोले या तेलुगु बोले या गुजराती बोले। आई थिंक दे कैन जस्ट बी देमसेल्व्स, इट्स अ सेफ स्पेस। और थोड़ा उसमें हम अपना फाइनेंशियल इनोवेशन की भी कोशिश कर रहे हैं, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो कैसे करें, सर्विस क्वालिटी को बेटर कैसे करें। इट्स अ प्रोसेस, बट एटलीस्ट वी फील कि अगर हम फोकस्ड रहेंगे तो ये कर सकते हैं। So like this is actually really good to have people like you जो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि
बहुत सारे लोगों को एसेस ही नहीं होता इन सब अपॉर्चुनिटीज़ का, उनको नॉलेज ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है. सो लाइक हाँ, फ्यू डायमेंशंस आप कवर करो, कुछ कहीं से मिल जाती है. एंड हम देखते कि कहाँ कहाँ से मतलब women are doing such interesting businesses और बहुत मतलब हसल है. जैसे हमने पिछले हफ्ते एक लोन दिया, सूरत में एक महिला है, तो वो पहले ब्यूटी पार्लर का मेकअप आर्टिस्ट थी. वो तो जैसे घर घर जाके मेकअप का काम करती थी. फिर उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया, स्किन केयर सीख लिया, फिर एक कोर्स कर लिया, कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर लिया. फिर उनको लगा कॉस्मेटोलॉजी, स्किन क्लीनिंग, एक्ने क्लीनिंग एक लाइक पूरा फील्ड है. तो उन्होंने अपना दुकान बना लिया, लाइक क्लिनिक बना लिया कोर्स करने के बाद. और शी नीडेड अ मशीन, तो वो कॉस्मेटोलॉजी की कोई मशीन रहती है, तो वो करीब 3 लाख रुपए की आती है. तो फिर वो लोन हमसे लिया उन्होंने. एंड नाउ शी कीप्स इन टच. हम उनके बिजनेस को अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं. वी नो, मुझे लगता है कि वो भी चेन बना लेंगी कभी, मतलब लाइक उनको रिकॉग्निशन भी मिला और ऑल्सो कम्युनिटी मिल गई, मतलब वो जुड़ गई हमसे. तो वी सी दैट अ लॉट. देन वी सॉ वुमन रनिंग अ इंजीनियरिंग बिजनेस. वो फाउंड्री बिजनेस मैसूर में चलाती हैं. मतलब इंजीनियरिंग में बहुत ही कम महिलाएं थे, मैन्युफैक्चरिंग में और भी कम. So it was one of our bigger loans, and again, like you know, she's an icon. अब कोई भी और इंजीनियरिंग की महिला आती है तो हम कहते हैं आप इनसे भी बात कीजिए, देखो ये वो ऑलरेडी कर रही हैं. सो एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे से बहुत सीखते रहे. तो हमने भी ऐसे ही सीखा है, एंटरप्रेन्योर्स से बात कर करके, फाउंडर्स से बात कर करके. तो या इट्स फैसिनेटिंग. और इंडिया में विमेन का जो क्रेडिट डिमांड है बहुत बड़ा है, क्योंकि पहले तो विमेन को एसेट्स नहीं मिलते, राइट. जो फैमिलीज में विल लिखी जाती है तो प्रॉपर्टी और दुकान सब बॉयज़ को मिलता है, राइट, हस्बैंड्स के. हाँ. और फिर विमेन चेंज होम्स, तो वो अपना वंस दे आर मैरिड, तो वो अपने ऑलरेडी उनके पेपर वर्क पे ब्रेकेज आ जाता है. तो लोग पूछते हैं ये आपका एड्रेस है, ये वो आपका एड्रेस है, बैंक पूछता है ऐसे. एंड देन ऑफ कोर्स आई थिंक फाइनेंशियली हमारी फैमिलीज में विमेन को कंजर्वेटिव होना सिखाया जाता है, राइट. पैसे की बात है तो मतलब आदमी लोग देख लेंगे, राइट. ऐसे कोई डिसीजंस हैं. सो आई थिंक वी नीड टू ब्रेक दैट, वी नीड टू अनशैकल दैट. और इसके कारण मोस्ट विमेन एक्चुअली डोंट इवन गो एंड लुक फॉर क्रेडिट. मतलब वो फाइनेंसिंग ऐसे बस अपने जो भी अपने सेविंग्स है उससे ही चलाना चाहते हैं. पर बिजनेस को तो कैपिटल चाहिए, फिर उस फाइनेंसिंग तो चाहिए, उसके बिना कैसे बनेगा. हाँ, मतलब थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है. बच्चों को मैं बोलते हैं, मतलब गर्ल्स को बोलते हैं कि लाइक सिट प्रॉपर्ली, ईट प्रॉपर्ली, बिहेव प्रॉपर्ली. सो लाइक दिस हैव टू चेंज. बाकी आपने बताया कि आपने शीरोज 2013-14 में शुरू किया था. सो वाज देयर समथिंग पर्सनल which inspired you to? Yeah, तो मुझे लगता था internet is so exciting. It's this big Alice in Wonderland happening to us. And I grew up in a steel plant. तो मतलब again manufacturing is a very male dominated industry. तो मुझे हमेशा लगता था कि internet is a new opportunity in front of our eyes. अब इसको भी हम क्या ब्रो थोड़ी बना देंगे, मतलब you know it can't form the same pattern that the industrial age did. You know, we have to be a lot more open and lot more inclusive. And I felt कि internet is also so powerful, मतलब for women particularly. तो जैसे ही Sheroes over its lifetime reached about 27 million women. तो हमने women click helpline शुरू किया. बहुत सारे women hesitant हैं, बात करना चाहती हैं पर किससे बात करें, या कोई प्रॉब्लम है किससे बात करें. So that helpline became like a free counseling service, free listening service. तो करीब 30 लाख महिलाओं ने उस हेल्पलाइन को यूज़ किया है. फिर हमने एक रिमोट वर्क का प्लेटफॉर्म बनाया, मार्स बाय शीरोज़, जिसमें विमेन वर्क फ्रॉम होम. तो यू नो कोविड के बाद रिमोट अब बढ़ा है, हम कब से रिमोट की बात कर रहे हैं और रिमोट बिजनेसेस को बेच रहे हैं. एंड देन वी बिल्ट अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज़ अराउंड लर्निंग. लाइक वी बिल्ट दिस प्रोग्राम कॉल्ड विमेन वर्ल्ड. करीब 150,000 women went through a program of digital entrepreneurship. उन्होंने अपने आप को स्किल किया. तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हमने. एंड आई थिंक इट वाज रियली पावरफुल. हम ये तभी कर पाए क्योंकि वो सब इंटरनेट पे था. अगर हम ये ऑफलाइन करने की कोशिश करते तो मतलब कभी नहीं होता, राइट. तो इंटरनेट इज़ अ force of good. And
I personally want to put it to good use. So मैं कहती हूँ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और अब कैपिटल. तो महिला मनी के साथ अब मैं एक और फंड बना रही हूँ, वेंचर फंड. तो जो लोग वेंचर स्केल बिजनेसेस बना रहे हैं और विमेन हैं या विमेन मार्केट्स में बनाना चाहते हैं या व्हाट आई कॉल वर्ल्ड पॉजिटिव कंपनीज, अच्छी कंपनीज बना रहे हैं, तो उन सब में फिर अब हम इन्वेस्ट करते हैं, यू नो. तो इट्स लाइफ इज कम अ फुल सर्कल, यू नो. बट माई होल थीसिस विद शीरोज वाज we need to sort of appropriate a part of the internet for women and just for them, you know. Like I think we were the first company to introduce a gender login, you know. I know AI abhi bahut kaam karne laga hai ye sab, but we built like a gender login way back. So a lot of interesting things happened, but I think हमारी कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा हुआ है. लाइक मेरे को रोज़ कहीं ना कहीं से ईमेल्स, मैसेजेस आते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, यू नो, हमें यहाँ से हेल्प मिला, हमारा करियर बना, हमने बिजनेस शुरू किया, आई ब्रोक स्टीरियोटाइप्स. सो आई थिंक इट्स अ होल मूवमेंट, यू नो. एंड यू जस्ट एक बार वो अनलीश हो जाए दैट जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल, तो फिर इट्स ऑन इट्स ओन, राइट? इट्स टेकन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन. Yeah, it's wonderful. 40 lakhs of women connected with you, like, so this shows like trust they have put in and the credibility. So actually this is good. And main point ये था कि जो हमारा है tech and all in internet, they don't filter basis on gender. So like, and also मतलब जो when men are building, they're building very bro things, right? More dating sites, more gambling sites, you know. And I know all those are needed, but nobody's asking women what do you need, you know, or nobody's sort of building for the needs of almost 50% of our population, right? तो कोई हमारी मम्मी के लिए इंटरनेट नहीं बना रहा है. तो फिर मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूज़र एस्पिरेशनल कुछ करना चाहते हैं और स्मार्ट हैं बहुत, तो वी नीड टू सॉर्ट ऑफ मेक इट ईजी फॉर देम टू यूज़ द इंटरनेट. वही है, सबको मॉडर्न भी होना है बट वही कन्वेंशनल सोच भी रखनी है. सो दिस हैज़ टू चेंज. सो लाइक और आपने क्या सीखा? एंड ऑल्सो वन थिंग, लाइक बहुत मल्टीपल रोल्स रहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी है, मदर भी है, यू हैव फैमिली टू लुक आफ्टर. लाइक हाउ यू मैनेज ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? या सो अभी मेरी डॉटर है, आई हैव वन डॉटर एंड नाउ वन कैट. कैट तो मेरी सुनती नहीं है. माई डॉटर इज जस्ट गॉन टू कॉलेज. तो बट यू नो जब मेरी कंपनी ग्रो कर रही थी, माई डॉटर वॉज ऑल्सो ग्रोइंग अप, यू नो. सो आई हैड लाइक अ लॉट ऑफ बैलेंसिंग टू डू. हमारा ऑफिस नोएडा में था एंड यू नो इट वॉज लाइक अ फुल लाइफ बेसिकली, कॉन्स्टेंटली ऑन. I got a lot of help, you know, between I think family and between you know, people who support me, my own staff and everybody. But I think mental space was always taken. I had no mental space ever, you know. So abhi jab, you know, like my daughter's gone to college and of course and my work has also changed quite a bit. वो pace थोड़ा कम हो गया है now, you know, investment is a slower business. Mahila Money has a very strong management team. हमने different तरीके से capital raise किया. तो उस सब के चलते I can see that those were very intense years. Like जैसे sometimes I talk to my sister, तो कहते हम घिस गए हैं. You know, and like you know, like पहले तो यही होप रहता था कि मैं 8 घंटे कभी सो पाऊँ. You know, like a full night's sleep was a dream. But it's changed now. I'm grateful those years were intense, and you know everything changes over a period of time. But I got a lot of help, and I said no to a lot of things. Like you know, there were years when I showed up for nothing, no parties, no weddings, no festivals. You know, ऐसे mental space ही नहीं था. मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मतलब you know ऐसे साड़ी और ज्वेलरी पहन के कहीं चले जाओ. काम छाम लगता है, बहुत ऐसे काम लगता है, राइट? तो फिर आई थिंक नाउ इट्स डिफरेंट, इट्स मच मोर कामर, यू नो. और अभी माई डॉटर डजंट लिव विद अस, यू नो, एंड आई थिंक इन सम वेज इट्स माई फेज 2. तो जब मैं अपने फेज 2 की अब सोचती हूँ तो यू नो आई वॉन्ट टू बी लॉट मोर कॉन्शियस. एंड ऑल्सो अभी you know, I think there was a need to prove something. Shiro's के time वो need थी कि मतलब you know, we can build this, we can create this. Today I don't feel like that. I just want to do a lot more mindful work
and also a lot more mission centric work. Like जैसे I will always work with the women's space, वो मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे करते रहना है. तो महिला मनी में वो हम बहुत consciously कर रहे हैं. The fund that I'm building is called Appreciate Capital, उसमें भी कर रहे हैं. और then I do a lot of not for profit work. I work with Udyam, I work with Milan Foundation, वो girls के साथ काम करते हैं. It's a girl fellowship program. Then I work with SFLC, Software Freedom Law Center, to keep the internet free and safe and private, privacy first. So I spend my time in things that I care for. Yeah, I think it's a lot of privilege, and I'm very grateful for it. So, like, your daughter is also into entrepreneurship, or like she has? No, my daughter कहती है मैं तो कभी entrepreneur नहीं बनूंगी. वो struggle देख रही है. I don't think I was a role model enough. She's entrepreneurial, हंसली है वो भी, और वो अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में है, तो आई एम श्योर वो she'll do something of her own, except that she, you know, maybe my playbook was not ideal. It was really like intense, and she's majorly into gender. In fact, उसने gender and AI पे एक पेपर लिखा, तो उसका one of the specializations is AI, and she's very interested in some of these topics. अब देखो, you know, वो आपकी तरह वो भी कुछ ढूंढ लेगी अपने आप, you know, paths open up. So I'm not worried क्या करेगी, जो करेगी, you know, I'm sure. I hope she's just happy doing it. So I'm also using AI, Insta, and look, Meta and all. So like, you can't use your personal IDs everywhere. Yeah. And you know, people these days are very like clumsy and all. So how you created your personal space? Yeah. So you know, of course, I think some of our work is pre-Facebook, right? Pre-Meta, Facebook, Meta, whatever its name going to be next. I think safe space is an imperative for women to thrive. मतलब तो जैसे इंडिया में एक एग्जाम्पल है ऑफलाइन सेफ स्पेसेस, जैसे माइक्रो फाइनेंस ने ऑफलाइन सेफ स्पेसेस बनाए. वो SHG ग्रुप इज़ अ 5 women ग्रुप, तो women only है, वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, वो मिलते हैं. We took the same principle and brought it online. Women only groups, and it's a safe space. It's moderated. You can report spam. I know जैसे अभी भी online Twitter या Facebook पे spam control बहुत loose है, you know, like and hacking बहुत easy है. And then of course all of us have gotten like, you know, vulgar messages, images that we don't want to see, पर वो आ जाते हैं, right? I think we did a lot of work in cordoning off our platforms. तो पहले तो gender login बनाया हमने, मतलब I know face verification अब आया, डिजी यात्रा अब आया है. In I think 2015 we were working on it. तो we were working on this. Can you do a selfie login? आपके face से क्या आप login कर सकते हैं? And can we check your identity? And can members to gatekeeping, मतलब अगर आपको कुछ suspicious लगता है तो आप everybody can report. तो आपको मतलब एक कोई moderator ये काम नहीं कर रहा है, तो community did a lot of safekeeping. And we figured for women to express freely, कोई आके अपने दिल की बात कर रहा है, कोई पोस्ट कर रहा है personal pictures, घर के pictures, बच्चों के pictures. You don't want these to be like out there. You want to be sure that, you know, they're not being misused and data is safe. तो जैसे हमने शीरोज का मॉडल बनाया, बिजनेस मॉडल, तो हमने बहुत कॉन्शियसली एडवर्टाइजिंग मॉडल नहीं बनाया, क्योंकि हमें पता था जैसे ही बैनर्स लगाएंगे, यू नो, एड्स लगाएंगे, तो वो एडवर्टाइजर्स को वो डेटा चाहिए होगा, किसने क्लिक किया, कौन है वो यूज़र, कहाँ रहते हैं, उनका IP क्या है. सो द डेटा नेवर लेफ्ट आवर प्लेटफॉर्म्स. बेसिकली हमने किसी को, nobody had access to that data, and our business model was completely different. तो हमने रिमोट वर्क का प्लेटफॉर्म बनाया, अदर प्रोडक्ट्स बनाए, बट बिल्कुल भी मतलब दिस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ थिंकिंग इन building both the platforms, Mahila Money and Sheroes. And because Mahila Money financial platform है, और भी मतलब वहाँ पे तो बिल्कुल माइक्रो फाइनेंस का नैरेटिव है, women only finance, लोग एक दूसरे को जानते हैं. वहाँ पे हमने थोड़ा इनोवेशन किया वीडियो में. By that time video had become big. तो Mahila Money में लाइव वीडियो है, मतलब यू नो आप जान सकते हैं आप किससे बात कर रहे हैं.
आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो ऐसे कोई इट्स नॉट अ ब्लैक होल. You can come back and ask, why was I rejected? What can I do to become a better borrower? All of that. So why you choose only women? So actually women की disparity भी बहुत बड़ी है. तो एक तो $160 billion का क्रेडिट गैप है. तो अगर हम $160 billion लेकर आएँ और women को लोन्स दें तो वो गैप पूरा होगा. मतलब एंड आई थिंक $160 billion तो कहीं नहीं है. इवन इफ यू डू $1 billion in 5 years तो मतलब बहुत बड़ा गैप है, क्रेडिट गैप. 2, आई थिंक विमेन का फाइनेंशियल स्टेटस गैप बहुत बड़ा है अभी भी. विमेन इन वर्कफोर्स कम है, विमेन इन लीडरशिप कम है. वेंचर में 2.5% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स गो टू विमेन. I think we have a long way to go. We've done a lot of work. So if I count from my mother's generation to me, बहुत ground cover हुआ है. पर अभी from me to my daughter, we still have a long way to go. So like when you decided, you said your mother inspired you. So like what's the inspiration that led you this way? Like So actually, yeah. So I grew up in small towns. My mother came from literally a village. I grew up in a small town. तो इट्स नॉट जस्ट मी एंड माई मदर. मतलब हम सब ऐसी महिलाओं को जानते हैं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती हैं, जो अपनी रिकग्निशन चाहती हैं, पर्सनल रिकग्निशन, जो एस्पिरेशन रखती हैं और जिनके पास अब मोबाइल फ़ोन है, राइट. तो मतलब दिस इज़ मैजिकल. ये सब पहले भी था पर टेक्नोलॉजी अब बेहतर हो गई है. सो दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ लाइक टाइमिंग, राइट. तो मुझे हमेशा लगता है कि वी नॉट जस्ट सर्विंग वुमेन. यू एंड आई नो वी सर्विंग इंडिया इज़ फुल ऑफ वुमेन विद एस्पिरेशंस. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इफ़ यू हैव सीन दिस मूवी इंग्लिश विंग्लिश, इफ़ यू रिमेंबर श्रीदेवी, शी इज़ अ लड्डू मेकर. तो ऐसी कितनी महिलाओं को हम जानते हैं जो कुछ करती हैं और बड़ा करना चाहती हैं, राइट. सो आई रिमेंबर वो मूवी में एक डायलॉग है जहाँ पे वो she has a delivery to make and she calls the husband to say आज मुझे गाड़ी दे दो, मेरे को लड्डू डिलीवर करने जाना है. and he says नहीं आज मैं बिजी हूँ, मेरा मीटिंग है. and she takes an auto. इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम. इंग्लिश इंग्लिश she learns English, right. वो न्यूयॉर्क जाके इंग्लिश सीखते हैं. तो वो ऑटो लेके जाती हैं. तो हमें हमेशा लाइक मेरे को ऐसे विजन आता है कि what if she had like a delivery van with her brand on it. That movie is also fascinating. Like she learned English. Exactly. Like husband से छुप के करना पड़ा. Exactly. तो women के ये जो silent barriers हैं ना बहुत बड़े हैं. तो जैसे बहुत लोग कहते हैं कि women क्या काम करती हैं, आप तो घर पे हो, पर घर पे रहना भी बहुत काम है. मतलब men को बोला जाए घर पे रह के संभालो तो एकदम भाग जाएंगे, मतलब अगले दिन भाग जाएंगे. So I think the silent work never stops. और इंडिया में तो मतलब केयर गिविंग वर्क, आवर मील्स आर एलैबोरेट. 3 बार खाना बनता है, 3 बार गर्म रोटी बनती है इंडिया में. मतलब बहुत बड़ा काम है. कौन करता है ये सब. बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं हमारे. दिवाली 10 दिन चलता है, दशहरा, दुर्गा पूजा, होली. दिस इज ऑल इनविजिबल वर्क. दिस इज ऑल्सो एडिंग टू नॉन पेड वर्क. तो विमेन काम कर रही हैं पर उसके पैसे तो नहीं कमा रहा है, राइट. ना क्रेडिट मिल रहा है. जब गेस्ट आते हैं तो लाइक पूरा दिन किचन में निकल पूरा दिन हस्बैंड बैठ के बाद बस ऐसे गप्पे लड़ा किचन में वो काम कर रहे हैं. हाँ, तो ये अनकॉमन नहीं है, राइट. इसी को इनविजिबल वर्क बोलते हैं. एंड आई थिंक इंडिया में द proportion of invisible work is very high. We still have a lot of women who are not connected to economic mainstream. Basically, economic mainstream बोले तो employment, entrepreneurship, education, asset creation, access to money in some form, whether as an income or as an asset. तो we have a long way to go. तो मतलब अभी तो 100 साल और लगे रहना चाहिए तो फिर शायद मतलब we'll get to some Nordic type of levels. So what's the worst piece of advice you have ever received as a woman in your business? Actually मेरा ना एक कान खराब है तो मैं ज़्यादा एडवाइस सुनती नहीं हूँ. I'm actually noting down all the points जो मेरे को implement करने की ज़रूरत है. ऐसे देखो, सुनो सबकी, करो मन की. ऐसे थोड़ी बन सकता है. मतलब देखो आपकी सिचुएशन आपकी है और किसी को क्या पता है. You can't sort of
कोई आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लेगा, आप लोगे. इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल देन यू थिंक फॉर योरसेल्फ. तो ऐसे यू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ रैंडम एडवाइस, मतलब बट मैं तो ज़्यादा नहीं सुनती हूँ. This is actually great. What's the hardest decision you have ever made and how it helped you? Well, I think one of the hardest calls we took was at Shiro's. तो हमने job board बनाया 2013 में. We did very well and we were actually the number 3 job board in the market, but we were number 3 and we would never be number 2 or 1. तो फिर उस product को हमने kill कर दिया. And we were like, basically women were not getting jobs and companies were not able to hire enough women, or they were not hiring enough women. And we had a lot of traction. We had like, 250,000 women and I think some 10,000 companies posting. So it was, देखने में बहुत अच्छा था, पर अंदर पोक करके देखो तो बहुत ऐसे horrible था. So I took a hard call. मतलब this was our whole business back then. तो उसको हमने बंद कर दिया. और मतलब सबको बहुत ऐसे weird लगा, why are we doing this? But in hindsight it was the right call. But उस टाइम मुझे बहुत ऐसे, like I got angry emails from customers, from investors, and it was a complete reinvention because employment was core to us. But then we took that and converted that into the Mars platform, basically managed remote solutions. तो हमने कहा we will own both sides of the fence. मतलब जहाँ पे women की employment है और जहाँ पे companies का काम है, we will take care of both and took more ownership. तो फिर उसको बनाने में time लगा and remote work was not common those days. 2014-15 में remote work was not a thing. वो lockdown के समय सबको remote work के बारे में पता चला. So that business started doing well after COVID, क्योंकि सब लोग remote अब करने लगे हैं. But it was a very hard call because हम बने बनाए, it's like सब कुछ बनाओ and you're trashing it. But I think all good in hindsight. What was yours? In my case, I guess hardest decision is yet to come. Like you have gained experience, so like you have a lot of decisions that seems hardest to you. Yeah. But like I remember when I was like child, I was like एक होता है introvert. मैं introvert से भी बहुत नीचे थी. Private school में थी till 10th. I studied in private school, but still I don't have confidence to speak with people. So like government school के जाने के बाद एक लोग कहते हैं कि बच्चे खुल जाते हैं. So like वहाँ पे मेरा कुछ नहीं हुआ. मैं still बहुत introvert थी. So like वही कुछ लेके भी आना होता था ना. So like घर के बाहर वाली शॉप तक मैं नहीं जाती थी. मैं अपनी बहन को भेजती थी. So ma'am, what inspired you to start your own business? मेरे काम भी मैं खुद नहीं कर पाती थी. So like I was like बहुत ज़्यादा shy and all. So like hardest decision यही था कि like मैंने step out किया बाहर की world में. मेरे को लगा कि हाँ अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं. I need to interact. तो like धीरे धीरे introvert से like थोड़ा ambivert and then introvert. मैं ये भी नहीं कहूँगी मैं अभी भी एक्सट्रोवर्ट हूँ. अभी भी रहता है थोड़ा. पर लाइक हाँ वो लाइक जो फियर ऑफ स्पीकिंग, इंटरैक्टिंग, वो सब लाइक दैट हैव आई कैन सो रिलेट टू इट. जब मैं छोटी थी तो ऐसे जब गेस्ट आते थे, मम्मी माय मदर वुड से अंकल आंटी आए हैं बच्चे नमस्ते करो, तो मुझे नमस्ते भी नहीं करना था. मैं सोफे के पीछे छुप जाती थी कि मुझे किसी से बात नहीं करना है. And then even now I think I'm an extrovert mostly for work. Outside of work I'm like I'll be at home with my cat. So what's your best negotiation hack that women must learn? Actually I think it's not just mine. Be willing to walk away. मतलब I think वो एक फियर होता है, राइट? एक इनहेरेंट फियर होता है कि मुझे चाहिए, ये चाहिए, इसके बिना नहीं होगा. मतलब स्काई विल फॉल, द स्काई विल नेवर फॉल. देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस. दे माइट बी हार्ड ऑप्शंस, बट ऑलवेज बी विलिंग टू वॉक अवे फ्रॉम अ नेगोशिएशन. दे शुडंट स्मेल योर फियर और योर नीड, राइट? लाइक We should appeal, even though yes, I'm confident you now, have but to like, do it as an equal. आप चाहे मतलब बहुत टॉप शॉट से बात कर रहे हैं, पर आप negotiate as an equal करेंगे. And even if you don't have enough on the table, an unequal negotiation almost never works, right? They have to also get something from you. वो value exchange होना बहुत ज़रूरी है. But they should know that you have options. Basically, you have options. This is not the end of the world.
Let's do a rapid fire. So, are you ready? Yes, I'm ready. Bring it on. So, according to you, who's the most baddest woman in India right now? Who's the most badass woman? Actually, Anu Aga has been my badass icon for a long time. I love her. God bless her. So, what's the one thing women should stop apologizing in business? I know, I'm so annoyed about this. हम सारा time sorry बोलते रहते हैं. हर चीज़ पे हम sorry बोलते हैं. We're doing something, हम ही sorry बोल रहे हैं. मतलब कोई हमें thank you नहीं बोल रहा है. A billionaire you would love to have chai with? Oh, I can have chai with everyone, but the founder of Patagonia is on my list. I would love to meet him. I love the company. I love the book he wrote. It's called Let My People Go Surfing. Describe your entrepreneurial journey in one Bollywood movie title. Sheroes Have Money. Nice. So, next is, if Sheroes had a theme song, what would it be? Actually, Sheroes did have a theme song. And, you know, what is that song? Badalon Pe Pair Hai. I think it's pretty apt. The movie was pretty apt. One thing men in business need to unlearn. Mansplaining. So, one person you would like to have conversation with, whether live or die. एक्चुअली मुझे एलॉन मस्क को पकड़ना है और उसको थोड़ी एडवाइस देनी है कि भैया शांत हो जाओ बहुत हो गया. Okay, great. This is actually good. So, like, it's really had a conversation with No, you. thank you. I had so much fun. I love what you're doing, and you know, I can't wait to see where you go, what you do, and I want to take this opportunity to say, count me in as one of your supporters. I definitely need your help. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे you know मौके का फायदा उठाना चाहिए. And of course, look, so happy to see this. So happy to see. You're such a role model. और आपको देख के I'm sure आपके कॉलेज में, आपके मोहल्ले में सब इसका बिजनेस है, मुझे भी करना है, right? So you know, more businesses run by women, बड़े छोटे हर तरह के. And I think it's such a privilege. तो you know, हम शीरोज में कहते हैं टेक चार्ज और महिला मनी में कहते हैं जियो अपने दम पे. So you're both. So you know, so wonderful. I think now it's time for women to lead. Yes, this women have generation. always led. I think it's time for us to recognize them and to sort of say, hey, yours, you know, all yours.